Okay, so till the last session, what we have completed, I'll just give you an overview. So we continued with the preparation methods. The third preparation was about reduction of various compounds, and there was reduction of nano, meaning nitriles, amides, nitro, and oximes, all giving you the primary amine, the summary of which was given at the end of the reaction. This one, red nano giving you primary amines. Then we had the happy birthday reaction, wherein we had discussed many of the conversions with respect to amide. And a very important difference to remember that on reduction, it gives you a primary amine, and on happy birthday reaction, it gives you again a primary amine, but with one carbon less. That was the difference. Then the physical properties were done. Now continuing further with the chemical properties or the chemical reactions of amides. Chemical reactions में the first reaction is with the nitrous acid, and it is similar to the reaction of aniline with nitrous acid. Aniline और nitrous acid क्या देता है? BDC. BDC. So अब यहाँ पर यही similar reaction we are going to perform for all the three amines, primary, secondary, and tertiary. So first of all, was the nitrous acid stable or unstable? HNO2 stable है कि unstable? Unstable. 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 So we require to prepare in situ, और वो in situ वाला reaction है nano2 plus dilute HCl, sodium nitrite when reacted with dilute HCl under cold condition in the range of temperature 0 to 5 degrees Celsius. That's 273 to 278 Kelvin. It gives you HNO2 nitrous acid along with NaCl. And structurally, how do we write nitrous acid? Mono. Structurally, how do we write? Mono. HO and double bond O. That is nitrous acid ka structure. Now let's see this reaction for all the three amines one by one. So starting with primary amine ka reaction. So here if I consider the reaction for aliphatic primary amine, I'll represent as RNH2. And this aliphatic primary amine reacts with nitrous acid, which is prepared in situ from nano2 and dilute HCl. And here the reaction is carried out in acidic medium, so we require 2 moles of HCl. So nano2 and HCl तो obviously HNO2 prepare करेगा. Reaction acidic medium में है, so will require the HCl in excess. Now when they react together, similar to the BDC, the benzene diazonium chloride, even a primary aliphatic amine will give you a diazonium salt, but now it will be RN2 plus Cl minus, which is the aliphatic diazonium salt. So aromatic के case में, when the benzene was bonded with the N2 plus and Cl minus, there was a stabilization due to resonance. बट जैसे ही यहाँ पर ये रिंग की जगह कोई अल्काइल एलिफेटिक ग्रुप आ जाता है, तो दिस एलिफेटिक डायazonium salt is not that stable. It is basically an unstable and formed as an intermediate. So I repeat, a primary aliphatic amine on reaction with nitrous acid will give you a aliphatic diazonium salt similar to the BDC reaction. But in this case, the aliphatic is not stable, so it is formed as an intermediate. And of course, the byproducts of this reaction will be NaCl along with twice of H2O. Now, this aliphatic diazonium chloride being unstable, in further next step, it is hydrolyzed. अब हाइड्रोलिसिस में इफ यू रिमेंबर बीडीसी को जब हाइड्रोलिसिस किया था, व्हाट वाज द प्रोडक्ट?
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। phenol, फिनॉल, दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डायजोटाइजेशन। तो वहां पर मैंने बोला था कि बीडीसी का कोई भी रिएक्शन हो, एक चीज तो हमेशा याद रखो, N2 तो निकलना ही है बिकॉज इट्स एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, अलॉन्ग विद HCl निकलेगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो जैसे बीडीसी फिनॉल बनाता है, वैसे एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड विल गिव यू एन phenol, अल्कोहल। फिनॉल नहीं, अल्कोहल मिलेगा, अलॉन्ग विथ N2 तो निकलना ही है एज अ गुड लिविंग ग्रुप, एंड HCl। एग्जैक्टली सिमिलर रिएक्शन है वाया द डायजोनियम सॉल्ट इंटरमीडिएट विच इज अनस्टेबल। तो primary amine on reaction with nitrous acid in acidic medium actually gives an alcohol with the liberation of nitrogen gas। अब अल्कोहल में OH अगर प्राइमरी कार्बन पे लगा हो तो इट विल गिव यू अ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पे लगा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन पे लग गया तो टर्शियरी अल्कोहल। मतलब अमाइन में NH2 को देखकर वेदर इट इज अटैच्ड टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन, अमाइन तो प्राइमरी ही रहेगा। बट अल्कोहल में अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन पे लगा तो टाइप ऑफ द अल्कोहल प्राइमरी भी मिल सकता है, सेकेंडरी भी मिल सकता है, और टर्शियरी भी मिल सकता है। तो very important thing as a statement to remember that a primary amine on reaction with nano to dilute HCl under cold condition of 273 to 278 Kelvin gives an alcohol which can be primary, secondary और tertiary। बाकी तो कॉपी पेस्ट का रूल यहाँ पर भी है कि जो भी अल्काइल अमाइन होगा दैट सेम अल्काइल विल बी फॉर्मिंग द अल्कोहल। क्लियर विद दैट? अब on the next page, that is 211, you can see the mechanism of this reaction। अभी मैकेनिज्म आपको ना तो मेंस में है ना एडवांस में है, बट इस मैकेनिज्म का एक स्टेटमेंट है दैट इफ यू लुक एट दिस ओवरऑल मैकेनिज्म, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द R प्लस एज एन इंटरमीडिएट। मतलब बिफोर फॉर्मिंग द अल्कोहलिक कंपाउंड, जो RN2Cl है उससे R प्लस इंटरमीडिएट बनता है, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ carbocation intermediate, and the moment there is a carbocation intermediate you have to think of of stability, stability, and you have to follow the U-shaped mechanism। तो अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ethylamine on reaction with HNO2 prepared in situ from nano to dilute HCl under cold condition, that same condition will give जो भी R है अमाइन का वही R अल्कोहल बनेगा, along with N2 गैस का इवोल्यूशन and the byproduct of H2O। So that is the formation of ethanol। Okay, अब ये एलिफेटिक अमाइन की जगह इफ आई टेक द प्राइमरी अरोमेटिक अमाइन जैसे एनिलीन, एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड will now give you BDC and the reaction will stop over here because the BDC compound is of course very very stable। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड with the loss of N2 gas and of course H2O twice। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द कार्बोकटाइन कॉन्सेप्ट। इफ आई हैव द साइक्लिक रिंग विद द OH एंड अ CH2NH2, एक PYQ है ये, और इसको मैंने रिएक्ट किया HNO2 के साथ, तो थियोरेटिकली ये NH2 की जगह OH को रखना है, बट प्रैक्टिकली यहाँ पर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटाइन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, जो CH2NH2 का NH2 है उसको ब्रेक डाउन करके निकाल के कार्बोकटाइन बनाएंगे। From the moment there is a carbocation attached to the cyclic ring and the ring is 4 या 5 membered, you have to think
Ring expansion. Ring expansion. Ring expansion. But this is a cyclic ring. Yes, cyclic ring with a five membered and there is a positive charge outside the ring. तो यहाँ पर 1 2 3 रूल अप्लाई करोगे. अब 1 2 3 रूल मैंने क्या बोला था, विच इज असाइन नंबर 1? The plus. द प्लस चार्ज. एंड द रिंग वाले जो एडजेसेंट कार्बन है वो 2 3. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज 2 3 तोड़ो 1 3 जोड़ो. 2 3 तोड़ो 1 3 जोड़ो. After joining, this will form a six-membered ring. So you draw a six-membered ring and number them as, यहाँ पर अगर मैं 2 को रखूं तो 2 के बाजू में 3 और 2 के उस तरफ आ जाएगा 1 और 2 पे there is a OH and the positive charge will always appear on 2. second carbon. Correct. अरे understood. Yes, sir. उसके बाद there will be attack of the OH minus और OH minus ने अटैक करने के बाद the ring will be having two OH groups on the same carbon. And we know that such type of geminal diols are unstable. So it will immediately lose a water OH with H and will form a carbonyl compound, aldehyde or ketone. In this case, of course, it is forming a ketone, which is cyclohexanone. So starting with a five-membered ring, after the ring expansion, we are getting a six-membered ketonic group. अगर ये OH ना होता then the product would have been a cyclohexanol. क्योंकि OH ऑलरेडी दिया हुआ है तो दो OH आने की वजह से it will finally change to a ketonic compound. अब नोट्स में एक गड़बड़ है. there is one extra carbon which is bonded to this one. नोट्स में जो दिया हुआ है that is ring के ऊपर OH and then there is CH2 and then there is a positive charge. That is wrong, huh? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं यहां पर होना चाहिए. समझा मिस्टेक? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. तो ये करेक्शन कर लो ऑन द पेज नंबर 211. After the primary amine का reaction, now we move to the second part, that is secondary amine. अब secondary amine could be represented as R2NH, assuming that the alkyl groups are same. अलग होगा तो you can represent R and R dash. And it reacts with HONO, that is nitrous acid, prepared in situ from nano to dilute HCl under cold condition. अब यहाँ पर the H of the secondary amine combines with the OH of the nitrous acid to form H2O, and this H is substituted by N double bond O group. Now, what was this functional group called? Nitroso. नाइट्रोसो. और ये लिगेंड अगर पॉजिटिवली चार्ज के फॉर्म में है तो इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं. मतलब here the reaction is having a substitution of H plus by N double bond O plus और इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन. ये this is one of the ligand in the Brown ring test if you all remember. NO का चार्ज वहां पर ligand का चार्ज 1 लेते हैं +1. ठीक है तो ये एक रेफरेंस है of the Brown ring complex. Anyways, after the H getting substituted by N double bond O, we'll get the product as R2 and N double bond O along with H2O. It's a simple ESR reaction, electrophilic substitution reaction, and this particular compound would be called N-nitroso because it's bonded to the nitrogen atom and dialkyl amine. या फिर जो भी सेकेंडरी अमाइन हमने लिया उसका नाम आपको N-nitroso के साथ अपेंड कर देना है.
अब ये जो एन नाइट्रोसो डायल्काइल अमाइन बना है, दिस इज एन ऑयली येलो कंपाउंड, ऑयली येलो कंपाउंड। ठीक है, इट्स एक्चुअली एन इमल्शन, जैसे ऑयल वाटर का इमल्शन होता है, वैसे एक ऑयली येलो इमल्शन बनता है। एंड दैट्स अ कंफर्मेशन दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड वाया अ सेकेंडरी अमाइन ओनली। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का एक नाम है विच इज कॉल्ड लिबरमन्स नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमन्स नाइट्रोसो टेस्ट। whenever you talk about Lieberman's nitroso test या एमसीक्यू में कोई स्टेटमेंट आता है इस नाम से, then just याद रखना है that this particular statement talks about the secondary amine, talks about secondary amine। ठीक है, एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है which you can just go through। yellow oily nitrosamine produced from aliphatic or aromatic 2-degree amines during the reaction give green solution when it is warmed with phenol and Kong's sulfuric acid. On further dilution with water, the color changes from green to red, and when we add base sodium hydroxide to red solution, its color changes from greenish blue to violet. This reaction is known as Lieberman's nitroso test. तो ये Lieberman's nitroso test जो है, that is for secondary amine। One second। Okay, so this particular paragraph is important with respect to practical chemistry। जो कलर चेंजेस है वो आपको याद रखना है, अगर वो पूछा गया तो यू आर सपोज टू नो इट। Now moving to the third part, that is the reaction for tertiary amine। And tertiary amine के लिए we can represent with the R3N, assuming all the three alkyls are same। Now when this reacts with the nitrous acid HNO2, again prepared in C2 from nano2 dilute HCl under cold condition। अब यहाँ पर what happens is the tertiary amine doesn't have any H। प्राइमरी और सेकेंडरी में H था, टर्शियरी में कोई H नहीं है। मतलब टर्शियरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इट सिंपली बिहेव्स एज अ ल्यूइस बेस and reacts with the nitrous acid which in turn acts as a Lewis acid। तो काइंड ऑफ यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, जहां पर N अपना लोन पेयर H को देगा विद अ प्लस and will form a salt with the NO2 minus। So this particular compound which is formed is a salt which is named as trialkyl ammonium nitrite salt, trialkyl ammonium nitrite salt। ठीक है, और जब यहाँ टर्शियरी अमाइन ल्यूइस एसिड से रिएक्ट करता है यानी नाइट्रस एसिड के साथ, इट डज नॉट शो एनी विजिबल चेंज, मतलब कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है, नो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज इज ऑब्जर्व्ड। सो सिंस देयर इज नो विजिबल चेंज, वी से दैट टर्शियरी अमाइन एज गुड एज डज नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन। तो अगर बोला कि एन अननोन अमाइन reacts with tertiary amine and does not show any visible change, रादर रिएक्ट करता ही नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द टर्शियरी अमाइन। अब दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द एलिफेटिक अमाइंस, बट इन केस वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द टर्शियरी अमाइन इज एन अरोमेटिक बेंजीन, एंड बाकी दो ग्रुप को मैं डाइमिथाइल ले लेता हूं, CH3CH3। एक बेंजीन है और दूसरे दो मिथाइल है। अब जब ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एलिफेटिक के जैसा रिएक्शन नहीं होता है। What happens over here is the nitrous acid breaks down as HO minus and NO plus, generating a nitrosonium ion which acts as an electrophile, and as an electrophile वो रिंग के ऊपर जाकर अटैक करता है। So what type of reaction is actually happening here?
कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है? ESR. ESR। अपने शान मैकेनिज्म का ESR रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So now this nitrosonium ion will attack the benzene ring. At which position it will attack? Para. Para. Why? So it's a derivative of amine. And Yes. aniline. एनिलीन का डेरिवेटिव है मतलब पापत के जैसा है, और पापत के जैसा है मतलब ओपी डायरेक्टिंग है, और ओपी डायरेक्टिंग है तो मेजर प्रोडक्ट में एन डबल बॉन्ड ओ पैरा पे लग जाएगा, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट विच विल बी नेम्ड एज एन डबल बॉन्ड ओ का फंक्शनल ग्रुप में नेम है 4 नाइट्रोसो, एंड बारिंग दिस नाइट्रोसो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिमेनिंग अमाइन? टर्शियरी के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था नेम करने के लिए। टाइमिंग, ये दोनों मिथाइल छोटे वाले ग्रुप्स को H से रिप्लेस कर लो, तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज And एनिलीन। और एक्चुअल स्ट्रक्चर में दो मिथाइल ग्रुप्स है जो कहाँ बॉन्डेड है? NN. क्या लिखोगे? N कॉमा N डाई मिथाइल एनिलीन। The tertiary amine with a nitroso at para will be called 4-nitroso NN dimethyl amine, along with of course H2O as the byproduct। यहाँ से H और ये OH निकल जाएगा। तो डायमिथाइल हम्म एनिल डायमिथाइल अमाइन। सॉरी, एनिलीन। एनिलीन, डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो समराइज करते हैं। द रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड for the primary amine gives an alcohol with the liberation of N2 gas. Secondary के केस में it gives you an oily yellow emulsion, and tertiary के लिए it gives no reaction. Barring the special cases, अगर aliphatic amine लिया और उसमें अगर N2 गैस इवॉल्व हुआ तो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ प्राइमरी। ऑयली येलो इमल्शन बना तो कंफर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन, और कोई विजिबल चेंज नहीं आता है तो इट्स अ कंफर्मेशन फॉर टर्शियरी अमाइन। So with all these conclusive points, the nitrous acid reaction is used as a distinguishing test between primary, secondary, and tertiary amine. It's used as a distinguishing test. Clear with all the examples? अरे बोलो। Yes, sir. Okay. Moving further to the second reaction, and that is acylation of amines. So acylation is similar to which reaction? कौन सा Friedel-Crafts. मैकेनिज्म? सॉरी, ESR. ESR। मतलब शान में जो हमने असाइलेशन देखा था वही वाला रिएक्शन। अब जब शान में असाइलेशन हमने किया था, द बेंजीन वाज रिएक्टेड विथ असाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Lewis acid. AlCl3 which acts as a Lewis acid। And what is the role of AlCl3? Generates an Generate. electrophile. टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से Cl माइनस को डिटैच करके असाइलियम आयन बनाएगा, और ये असाइलियम जाकर रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड विल गिव यू द फिनोन कंपाउंड्स। तो बेंजीन से फिनोन बनाने का ये मस्त रिएक्शन था। ठीक है, बट शान का जो डबल ए रिएक्शन है, मैंने बताया था देर आर सम कंपाउंड्स विच डोंट गिव द डबल ए रिएक्शन, एंड विच वर दे? Pan. पेन। और पेन रिफर्स टू विच थ्री कंपाउंड्स? Phenol, aniline. एंड N is for नाइट्रो।
जो स्ट्रॉन्ग EWG वाले ग्रुप्स है वो रिंग को इतना डीएक्टिवेट कर लेते हैं कि उसका अल्काइलेशन और असाइलेशन होता ही नहीं है। और फिनॉल और एनिलीन में रीजन क्या था नहीं होने का? Lone pair donates it to the loose acid. Correct. The lone pair from the phenolic oxygen or the aniline nitrogen donates to AlCl3, which in turn does not generate the electrophile, and that's why no ESR reaction would take place. ठीक है, so just remember this and make a note अगर आपको याद नहीं है ये चीज कि शान का डबल ए रिएक्शन 3 कंपाउंड्स नहीं देता है और उन 3 में Pa refers to phenol aniline and N refers to the nitro compound. तो अब यहाँ पर अमाइंस के केस में असाइलेशन जब करते हैं तो इफ आई हैव द प्राइमरी अमाइन RnH2, तो असाइलेशन में द H गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय असाइल ग्रुप। अब यहां पर क्वेश्चन है कौन सा H सब्स्टिट्यूट होगा इफ इट इज एन एलिफेटिक अमाइन एंड इफ वी आर डूइंग असाइलेशन। यहां पर तो रिंग का H सब्स्टिट्यूट होता था, ठीक है, प्रोवाइडेड वो इन 3 कंपाउंड्स में से नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम फिनॉल या एनिलीन का फिनॉल का लेट से असाइलेशन करते हैं नॉट इन प्रेजेंस ऑफ Lewis acid but in the presence of pyridine, a nitrogenous base, इधर क्या बनता था? ये मैंने फिनॉल में बताया हुआ है। So acylation doesn't happen on the ring, but it can happen on Side. Okay. which one? The OH. The OH का H. So pay attention, जिनको ये रिएक्शन नहीं याद है प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। If you have phenol का acylation with acetyl chloride, of course not in the presence of anhydrous AlCl3 with the reasons discussed, but now taking place in the presence of pyridine, the H of the OH gets substituted by the acyl, generating OCOCH3. And what compound is this? Anisole. It is not anisole. CO group उड़ाएगा तो anisole होगा. It is not anisole. Which functional group do you see? Ether. I guess that's so. ये ना तो ईथर है ना कीटोन है, ये एस्टर है। इट्स नीदर एन ईथर नॉर अ कीटोन, इट्स एन एस्टर। और एस्टर का आर डैश क्या है इस केस में? व्हाट इज द आर डैश? Methyl. इट इज नॉट मिथाइल। Phenyl. कितने ब्लंडर कर रहे हो? मैंने एस्टर के लिए कितनी बार बोला है, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। एस्टर इज ऑलवेज टू बी रेड एज RCOO, आर डैश। हमेशा एस्टर सीधा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये प्लीज रिएक्शन नोट कर लेना। अब इस एस्टर का नाम, आर डैश का नाम इज फिनाइल, आर का प्रीफिक्स इज एसिड एंड देन एड द वर्ड एट। ये फिनाइल एसिटेट है या फिर फिनाइल इथेनोएट है। ये हाइड्रोकार्बन के केस में भी मैं एक बार बता चुका हूं इन द डायरेक्टिव इफेक्ट। तो व्हेन आई से फिनाइल एसिटेट, ये किसके जैसा कंपाउंड है? इज इट पापत जैसा या NaCl का जैसा? Papat. इज इट? यस, बिकॉज ये फिनॉक्साइड के जैसा देखने का। फिनॉक्साइड ऑफकोर्स नहीं है बट फिनॉक्साइड के जैसा है, यानी पापत के जैसा है। मतलब अगर इसके ऊपर कोई भी शान रिएक्शन करेंगे तो इट विल बी एन OP डायरेक्टिंग कंपाउंड। और यही चीज एनिलीन में भी बताया था मैंने। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनॉल और एनिलीन का असाइलेशन रिंग के ऊपर नहीं होता है बट H ऑफ OH या H ऑफ NH2 पे होता है। तो इतना सारा थियोरी मैं ऑलरेडी बता चुका था। तो अब बेस्ड ऑन ऑल दिस थियोरीज लेट्स अंडरस्टैंड द असाइलेशन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस में जब असाइलेशन करते हैं
So the H which is attached to nitrogen in amines, यानी NH2 का H, NH का H get substituted by acyl group, that is RC double bond O. इसका डेफिनेशन ही ये हो गया, अमाइंस में असाइलेशन मतलब the H bonded to the nitrogen atom in amine is substituted by the acyl group. Now let's see the reaction for all the three amines starting with primary. Primary में let's take an example of C2H5NH2. Acylation is done either with acetyl chloride या फिर we can also use acetic anhydride CH3COO COCH3. Correct? And they are reacted not in the presence of anhydrous AlCl3 but in the presence of pyridine and heat. अब करना क्या है, H of amines को रिप्लेस कर देना है बाय COCH3 बस, along with बाई प्रोडक्ट. अब जब असाइल क्लोराइड यूज करोगे तो HCl बनेगा, एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा. बस इतना ही फर्क है whether you use acyl chloride or the acid anhydride, and both the things are already listed over there. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम. My first question, the product has what functional group? प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है? amide, अमाइड. अमाइड न नहीं, अमाइड. लुक एट दिस फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम रिवर्स, CONH है ये. अब अमाइड के लिए भी नेम करने के लिए अमाइन के जैसा ही ट्रिक यूज करेंगे, और ट्रिक ये है कि टाइम बिंग ये जो NH2 का ग्रुप है उसको H से रिप्लेस कर. अब क्या दिखता है तेरे को? अल्काइल अमाइन। अरे भाई, RCONH2 दिख रहा है विच इज एन अमाइड. इट्स एसेटामाइड. लेकिन रियल स्ट्रक्चर में H की जगह इथाइल लगा हुआ है. कौन से एटम पे? वेर इज द इथाइल बॉन्डेड? एन पे। तो क्या लिखेंगे? N इथाइल एन एसेटामाइड. और एसेटामाइड की जगह इथेनामाइड भी लिख सकते हैं IUPAC में. तो इट्स एक्चुअली अ सेकेंडरी अमाइड. बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का ये एक कंपाउंड बना. बेकमैन्स रीअरेंजमेंट. ठीक है, रेफरेंस लिख लेना 2 डिग्री अमाइड, सॉरी अमाइड, एंड उससे आपका रेफरेंस है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का. बेकमैन्स रीअरेंजमेंट. डू यू रिमेंबर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट? Oxime to amide in presence of concentrated H2SO4. क्लियर है ये रिएक्शन? Is that clear? So why do we हाँ. use pyridine instead of AlCl3? Why? Why do we use pyridine instead of AlCl3? Because AlCl3 में वही तो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास एनिलीन का नाइट्रोजन या फिनॉल का ऑक्सीजन होता है and it has a lone pair. When you react this with acetyl chloride and you take anhydrous AlCl3, so as a Lewis acid, the lone pair gets coordinated to the aluminium, and because of that it forms a complex, and because of that it does not allow the formation of the acylamine. मतलब यहाँ पर ये कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और उसकी वजह से जो शान का डबल ए रिएक्शन है वो नहीं होता है. And that's why instead of the anhydrous AlCl3, what we use in acylation for amines or the phenolic compounds is pyridine. समझा? Okay. Yes, sir. Thank you.
अब सिमिलर लाइंस पे सेकेंडरी अमाइन के लिए रिएक्शन। अब बहुत सिंपल हो जाता है, खाली एक कॉन्सेप्ट समझना था कि अमाइन में H जो नाइट्रोजन को बॉन्डेड है वो सब्स्टिट्यूट होता है। एंड आई टेक द एग्जांपल एज C2H5 twice NH, that is diethylamine, and it reacts with the acetyl chloride in the presence of pyridine। करना क्या है, H उड़ाओ, COCH से लगाओ, तो C2H5 N C2H5 and COCH3। वंस अगेन कौन सा कंपाउंड बना, अब क्या बोलोगे इस कंपाउंड को, 3 डिग्री। 3 डिग्री अमाइड। और वापस ये अमाइड को नेम करने के लिए इन दोनों ग्रुप्स को H से रिप्लेस कर दो। व्हाट इज द पेरेंट कंपाउंड यू ऑब्जर्व, एथेनॉल। ethanamide। And in the real structure, there are two ethyls bonded to whom? N. So you will write NN diethyl ethane amide as the product name. समझा ये नाम? Yes. ठीक है, तो वापस बोल रहा हूं, जब भी डबल ए रिएक्शन अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए सोचो, इट्स द H which is to be substituted bonded to the nitrogen, बस उतना ही है। अब टर्शियरी अमाइन में will the acylation happen? No, sir. Because of the absence of the H bonded to the H. nitrogen, there will be no reaction। ठीक है, अब एक नोट यहां पर कि अगर आपके पास एक प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन है, एंड इफ यू डू द असाइलेशन बाय यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड को हम बेंजोइल क्लोराइड ले रहे हैं, जहां पे R इज योर बेंजीन और द फिनाइल ग्रुप, एंड रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। खाली COCH3 की जगह अब बेंजोइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होने वाला है, एंड व्हाट वी गेट इज C2H5NH CO C6H5। अब इसको भी नेम करने के लिए वापस टाइम बिंग इसको H से सब्स्टिट्यूट कर दें। व्हाट इज द पेरेंट कंपाउंड यू ऑब्जर्व, बेंजीन के ऊपर अमाइड को क्या बोलते हैं, Benzamide. बेंजामाइड। और रियल स्ट्रक्चर में देयर इज एन इथाइल बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम, हेंस द नेम N-ethyl benzamide। तो अब व्हेन वी यूज असाइलेशन में बेंजोइल क्लोराइड इंस्टेड ऑफ द acetyl chloride or acetic anhydride, the reaction instead of the Friedel-Crafts is renamed as Cotton-Baumann benzylation। Cotton-Baumann benzylation। Cotton-Baumann benzylation। तो जैसे फ्रीडल एंड क्राफ्ट था, वैसे अमाइन के लिए दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिकली गिवन अ नेम एज Cotton-Baumann benzylation। क्लियर है? So to sum up, even the acylation of amine we did for a primary, secondary, and tertiary. In the first two cases, you have to just substitute the H which is bonded to N in amine by the acyl group, and tertiary doesn't have any reaction. And acylation में अगर benzoyl chloride use किया, तो बस एक नाम याद रखना है, and that is called the Cotton-Baumann benzylation, similar to Friedel-Crafts acylation। अब आगे के कुछ रिएक्शंस आर रिपीटेड रिएक्शंस, क्विकली खत्म करेंगे वो। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। एग्जॉस्टिव मतलब ऑफ कोर्स टेकन इन एक्सेस, बराबर, और अल्काइलेशन मतलब H को उड़ाना है, अल्काइलो लगाना है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव मतलब यू हैव टू कीप ऑन रिप्लेसिंग द H बाय द अल्काइल। This reaction is similar to which reaction we had already discussed? The Gauss reaction. The Gauss Yeah, sir, reaction, yes। Hoffman's ammonolysis वाला जो reaction है,
वही रिएक्शन यहाँ पर खाली अल्काइलेशन के नाम से दिया है। ठीक है, सो what we have in this reaction is if I start the reaction with a primary amine RNH2, अमोनोलाइसिस में हमने अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया था, लेट्स से R डैश X, तो HX निकलेगा और H की जगह अल्काइल आकर इट विल गिव यू अ सेकेंडरी अमाइन। वापस अगर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट किया, HX निकला, तो सेकेंडरी विल गिव यू अ टर्शियरी विद 2R डैश। अब थियोरेटिकली रिएक्शन रुक जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर आगे और कंटिन्यू होता है, और अब यहाँ पर आर डैश प्लस और एक्स माइनस का कॉस्ट बनता है। दैट इज द हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, एग्जैक्टली सिमिलर टू योर अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स नोट किया हुआ है। अ प्राइमरी अमाइन विल कंज्यूम, प्राइमरी अमाइन को कॉस्ट तक जाने के लिए कितना अल्काइल हैलाइड लगेगा? 1, 2 एंड 3। 3. सेकेंडरी को 2 लगेगा और टर्शियरी को 1 लगेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, the reaction here is carried out with or in presence of the mild base NaHCO3, क्योंकि ये जो एक्सेस एसिड निकला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस को यूज करते हैं, so that it doesn't interfere in the reaction. प्रॉब्लम क्या है, हमाइंस हमारे ल्यूविस बेस है और उनको अगर HCl मिल गया तो इट विल एक्चुअली न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म RNH3 प्लस Cl माइनस। वो प्रिवेंट करने के लिए हमें HCl को खत्म करना होगा, और वो खत्म करने का काम हमारा बेस करता है। समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? Yes. बोलो। तो हम्म, तो लास्ट वाले में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना, थर्ड वाले आर के साथ? यस यस, N पे जब भी प्लस होता है वो नहीं, हमेशा तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन बॉन्ड में होता है। अरे हाँ, क्यूएस में। एक आर में मिस कर दिया, सॉरी, थैंक यू। कोऑर्डिनेटेड विथ R डैश प्लस एंड X माइनस। यस। So, हम्म, so in the acylation of amine, if we react an acetyl alkyl amide further with acetyl chloride and pyridine, so will it react? ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज ये वाले कंपाउंड को अगर फर्दर रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट करेगा या नहीं? हाँ. आंसर इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस अमाइड कैन यू सी दिस लोन पेयर एंड द पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या दिखता है? ओह, सर समझ गया, ठीक है, रेजोनेंस. रेजोनेंस। तो अमाइन में कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन अमाइड में रेजोनेंस है। और ये अमाइड जो हाँ. है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स है, यानी आगे इसका रिएक्शन होता नहीं है। थियोरेटिकली एक और एच है, मतलब असाइलेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं होगा। ओके. ओके, द फोर्थ रिएक्शन भी वेल नोन है, एंड इट इज हॉफमैन्स एलिमिनेशन। टेल मी व्हाट वर द डिफरेंट केसेस ऑफ हॉफमैन्स या एंटी-सेड्जेफ एलिमिनेशन? Lazy base, सुपर। lazy substrate, व्हाट वाज लेजी बेस का एग्जांपल? tert butoxide, TBuO माइनस, टर्ड ब्यूटॉक्साइड। एंड एक लेजी सबस्ट्रेट का एग्जांपल था, एंड दैट वाज cos, कॉस गेटिंग कन्वर्टेड टू क्वाaternary अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वही चीज यहां पर अब हॉफमैन्स एलिमिनेशन में रिपीट कर रहा हूं। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट है जिसका N इज बॉन्डेड टू 4 ग्रुप्स। एक मैंने ले लिया इथाइल, एक मिथाइल, एक H और एक सेक ब्यूटाइल। ओके, सो यहां पर दिस पर्टिकुलर क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट इज टेकन। पहले यहां पर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को रिएक्ट करते थे। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड In situ AgOH को बनाता है, और अब ये I माइनस जो है
वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH माइनस से। तो जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है दैट विल कन्वर्ट टू क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारा लेजी सबस्ट्रेट। क्यों? बिकॉज सबस्ट्रेट में ये N 4 ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स इट वेरी वेरी बल्की एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ये OH माइनस एज अ बेस अंदर जाके बीटा के H को निकालने की कोशिश करता है तो इट विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ रिपल्शन। तो अब यहाँ पर बीटा के H कहाँ कहाँ पर है, लेट्स विजुअलाइज। तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये बीटा का H है, ये बीटा का H है, ये अल्फा है लेकिन मिथाइल पे कोई भी बीटा H है ही नहीं, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब विच आर द मोस्ट एक्सेसिबल बीटा H? The ethylon. अब मैंने जो एग्जांपल लिया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जांपल विच इज गिवन। आई टेल यू व्हाट्स द डिफरेंस, बट ये एग्जांपल को समझ लो। हाँ, तो मैंने बोला कि ये जो बेस है जब ये लेजी सबस्ट्रेट यानी बल्कि सबस्ट्रेट को अटैक करने जाएगा तो इट विल ट्राई टू रिमूव द मोस्ट एक्सेसिबल बीटा H। मोस्ट एक्सेसिबल कौन सा है? जो टर्मिनल वाले बीटा CH3 है। तो ये वाला एक है और ये दूसरा है, दो ही पॉसिबिलिटी है, बराबर। अब इनमें भी विच इज द इजियर पॉसिबिलिटी? The ethyl one. फ्रॉम द इथाइल वन, बिकॉज सेक ब्यूटाइल में बल्कीनेस ऑफ 4 कार्बन एटम्स अभी भी है, इसीलिए जो इथाइल वाला बीटा H है वो निकाल के इट विल गिव यू द मेन प्रोडक्ट एज इथीन। और उसके बाद N जो है वो 3 ग्रुप्स के साथ निकल जाएगा, वन इज H, अदर इज द सेक ब्यूटाइल and methyl, and this will be the byproduct along with formation of water. तो ये सिमिलर एग्जांपल मैंने वहां पर भी दिया था, जस्ट H की जगह मैंने कोई और प्रोपाइल ग्रुप लिया होगा। अब जो नोट्स में एग्जांपल दिया है उसमें N के साथ 4 ग्रुप कौन से हैं? 3 मिथाइल के हैं और एक सेक ब्यूटाइल का है। अब इसमें हाउ मेनी पॉसिबिलिटी टू रिमूव द बीटा H? Two. कितनी पॉसिबिलिटीज है? हाँ, Two. 2 नहीं, 5. नहीं, दिस इज अल्फा नो बीटा, One. दिस इज अल्फा नो बीटा, दिस इज अल्फा नो बीटा, दिस इज अल्फा। लेकिन बीटा जो 2 पॉसिबिलिटी है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला है, हम कौन सी पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं? बाहर वाला। बाहर वाला टर्मिनल, वो तो एक ही है ना। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको हीट करते हो तो एलिमिनेशन जो है दैट विल गिव यू ब्यूट 1 in along with a trimethyl amine and H2O. And this is what example is given in the notes. तो खाली याद रखो कि सेक ब्यूटाइल और इथाइल जब साथ में है तो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होता है, और अब बीटा का जो H निकलता है वो इथाइल के बीटा H से निकलता है बिकॉज ऑफ लेस बल्कीनेस। समझा? अरे बोलो। तो ये दोनों रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके थे, इट्स जस्ट अ रिविजन ऑफ द नोन रिएक्शंस। अब आते हैं 5th रिएक्शन के ऊपर, अगेन दैट इज गिवन बाय हॉफमैन्स। हॉफमैन्स का पूरा पिटारा अमाइंस में भरा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर नेम्ड आफ्टर हॉफमैन। इट्स नोन एज हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, and it's a very very important but a simple reaction. Let's see the general reaction. Here a primary amine, once again RNH2, reacts with chloroform and KOH, reacted in the ratio 1:3. I repeat, a primary amine here reacts with chloroform and alcoholic KOH in the ratio 1:3. अब जब ये रिएक्ट करता है
तो the 3 potassium and the 3 chlorine eliminates to give 3 KCl. The 3 OH takes away the 3 hydrogens H2 and H. 3 हाइड्रोजन 3 OH, 3 पानी बनाएगा. अब लेफ्ट टू राइट क्या बचा? RNC. What is RNC called? Isocyanide. अल्काइल आइसोसाइनाइड. Isocyanide. एक आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन हमने पहले पढ़ा है, RX प्लस AgCN. AgCN, जो RNC देता है अलॉन्ग विथ AgX. ठीक है, तो ये एक रेफरेंस तो याद है ही. दूसरा रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से भी हम आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, एंड दैट इज वाया क्लोरोफॉर्म KOH रेशियो 1:3. दैट्स द समरी. अब ये वाले रिएक्शन में जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इट हैज एन ऑब्नॉक्शियस स्मेल, मतलब वेरी टॉक्सिक एंड अनप्लेजेंट स्मेल. तो यहाँ पर ये जो अनप्लेजेंट गंदा सा स्मेलिंग कंपाउंड है, दैट बिकम्स एन आइडेंटिफिकेशन for the reaction of primary amine. Hence, it's used as a test for the detection of primary amine, and it's famously called Carville amine test. And this reaction is given only by 1 degree amine. तो ये एक डिटेक्शन टेस्ट है, नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. ये प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करेगा, सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी में डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट नहीं करेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. अब एक एग्जांपल अरोमेटिक का लिया है, तो अरोमेटिक में अगर हमने एनिलीन लिया और एरो पे आपको दिया है क्लोरोफॉर्म KOH, व्हाट्स द प्रोडक्ट? Phenyl isocyanide. बिकॉज जो भी R है वो कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट करोगे, और बेंजीन के ऊपर NC लगा, इट विल बी कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड. फिनाइल आइसोसाइनाइड. That is the example to understand. हाँ, बोलो. So if in this, if R is H, form amide. If R Hello. is, H, हाँ, H. So sir, it ये won't give RH लिया. the, so then the reaction won't like happen, right? Because of resonance. It will R go अगर false H है side. मतलब अमोनिया का रिएक्शन बोल रहा है. नहीं, यही वाला रिएक्शन, मगर आर एच लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा ना, तो रेजोनेंस नहीं, क्योंकि वो अमोनिया हो जाएगा ना, इट विल बी एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नो, वेट नो, सॉरी, नॉट एच, HCO, सॉरी, फॉर्माइड, HC फॉर्माइड. और अमाइड. हाँ Amides are first of all very stable compound because of this हाँ, तो resonance वही factor. बोल रहा हूँ, इसमें भी हाँ, तो रेजोनेंस नहीं के होगा से फिर रिएक्शन. फॉल्स होगा ना. हाँ, अमाइड रिएक्ट नहीं करेगा. तो जो जो हाँ, रिएक्शंस हमने अमाइन के लिए किया है, दैट डजंट वर्क फॉर अमाइड, बिकॉज अमाइन और अमाइड में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और स्टेबिलिटी का भी डिफरेंस है. बोथ वेज दे आर डिफरेंट. गॉट इट? So we have completed 5 chemical reactions. उनमें से फर्स्ट रिएक्शन लिंक्ड है BDC के साथ, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अलग वेज में रिएक्ट करता है, एंड इट बिकम्स अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. Second reaction, acylation of amines. The only point to remember, H of NH2 is getting substituted by acyl. Reaction primary, secondary देता है, but tertiary नहीं देता है. फिर थर्ड और फोर्थ हमारा वेल नोन रिएक्शन था, रिपीटेड एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन अमोनोलाइसिस के जैसा है, और एलिमिनेशन हॉफमैन्स या एंटीसेट्सेफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द एली सब का कॉन्सेप्ट. तो 3 ही न्यू रिएक्शन आपने यहाँ पर देखे, और वो तीनों सिंपल रिएक्शंस है, दे आर नॉट डिफिकल्ट रिएक्शंस टू अंडरस्टैंड. सिक्स्थ वन, लास्ट रिएक्शन करते हैं विथ अराइल सल्फोनाइल
क्लोराइड, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? अराइल मतलब बेंजीन है, सल्फोनाइल मतलब SO2 which is bonded as S double bond O and Cl. So this is aryl या phenyl sulfonyl chloride and it is very importantly also called Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. अब इसमें भी we have the reaction for primary, secondary and tertiary amines. एक खाली समझ लो तो बाकी दोनों सिंपल है। प्राइमरी के लिए I have RNH2, तो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है C2H5NH2 का। रिएक्शन समझने के लिए आई हैव रिप्रेजेंटेड द रिएजेंट फर्स्ट, यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है प्राइमरी अमाइन HNH C2H5 यानी इथाइल अमाइन के साथ। अब जैसे लिखा है उसमें समझ में आता है व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। It's The Cl. Cl from the सल्फोनाइल क्लोराइड एंड H from the प्राइमरी अमाइन। तो H वाले से Cl निकल जाएगा एंड अब लेफ्ट टू राइट वी आर गोइंग टू गेट बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O bonded with N H and C2H5। अब अगेन ये टाइमिंग इथाइल को मैं H लगा दूं तो व्हाट डू यू सी ओवरऑल स्ट्रक्चर एज? अगर मैं H लगा दूं इथाइल की जगह तो RS डबल बॉन्ड O NH2 जैसा दिखता है कि नहीं? अब ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है उसकी जगह पे मैं कार्बोनाइल ग्रुप रखूं तो आर वी नोइंग दिस कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको? Amide. अमाइड। तो अब कार्बोनाइल की जगह जब सल्फोनाइल आता है तो इट इज सल्फोनाइल अमाइड, शॉर्टली एंड स्वीटली कॉल्ड सल्फोन अमाइड। ये अपना अमाइड है और SO2 के साथ जो NH2 ग्रुप है उसको सल्फोनामाइड बोलते हैं। और क्योंकि ये अरोमेटिक है तो इसको बेंजीन सल्फोनामाइड नाम दे देंगे। So the name of this compound after writing in this particular format is very simple. It's benzene sulfonamide. But real structure में H की जगह इथाइल है और वो लगा हुआ है N पे, इसीलिए पूरा नाम है N इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड या सल्फोनाइल अमाइड लिखे तो भी चलेगा। समझा? Yes. अब इस रिएक्शन में look at this H which is bonded to N. What will be the charge on this H? जब NH बॉन्ड टूटेगा what will be the charge on H? Positive. मतलब this will actually break down to give you acidic H। और अगर ये एसिडिक है मतलब आगे अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो बेंजीन सल्फोनामाइड है दिस इज इंपॉर्टेंटली सल्यूबल इन अल्कली और अ बेस। अब ये स्टेटमेंट होल्ड करके रखना और अब देखते हैं रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के लिए। अब 2 डिग्री अमाइन में भी हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है HN एंड लेट्स से C2H5 डाइथाइलामाइन ले लेते हैं। अगेन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट होगा HCl। अब दोनों में एक फर्क नजर आया आपको प्रोडक्ट में? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? H, अब H नहीं है, हाँ H नाम तो नहीं। सिमिलर है NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो अगर ये आप इस तरह से लिखोगे देन द स्ट्रक्चर्स आर इजी टू अंडरस्टैंड।
It is NN benzene sulfone amide along with HCl. और दोनों में फर्क समझा तो इसमें कोई भी एसिडिक H नहीं है, मतलब ये बेस में डिसॉल्व नहीं करेगा। और तीसरा टर्शियरी अमाइन में तो H ही नहीं है, मतलब जिस हिसाब से HCl निकल रहा है और ये रिएक्शन हो रहा है, यहां पर देयर विल बी नो विजिबल चेंज विथ नो रिएक्शन। तो अब ये रिएक्शन सिंपल है और इसमें मेन चीज है कि तीनों अमाइंस को हम अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। कैसे डिस्टिंग्विश होगा कि अगर प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है हिंसबर्ग के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में डिसॉल्व होगा। सेकेंडरी अमाइन अगर रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट एसिडिक एच ना होने की वजह से बेस में डिसॉल्व नहीं करेगा। रिएक्शन होगा बट प्रोडक्ट बेस में डिसॉल्व नहीं करेगा। और टर्शियरी तो रिएक्शन ही नहीं करता है, मतलब ओवरऑल अ प्रोडक्ट विच इज soluble in alkali confirms primary amine. A product which is insoluble in base confirms secondary amine. And if there is no reaction, it confirms a tertiary amine. Simple reaction है हिंसबर्ग reagent का। And nowadays लिखा हुआ है it is replaced by para toluene sulfonyl chloride, जिसमें खाली पैरा के ऊपर मिथाइल डाल देते हैं बस। So this is more efficient Hinsberg reagent as compared to the earlier because of the EDG effect. समझा यहां तक? Any doubt? Fine, so we'll stop here. We have completed 6 chemical reactions of the amines, out of which 3 are something which we are already aware of. बाकी 3 ही एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो मैंने आज कवर की है, नथिंग मोर। उसमें भी 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है और 1 डिटेक्शन टेस्ट है जो कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का था। ठीक है, सो स्टॉप हियर।